وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ہاں فون کر صبح بات کیا تھا نا، تب کہے تھے میں ابھی گاڑی سے ہوں۔ ہاں جی جی ہاں، فرصت میں ہیں؟ فرمائیے، کون بول رہے ہیں؟ عبدالحکیم بول رہا ہوں، کہاں سے؟ یو پی سے بول رہا ہوں، یو پی میں کہاں سے؟ امبیڈکر نگر۔ اچھا اچھا، جی ہاں بولیے۔ مولانا الیاس صاحب کا ایک ملفوظ ہے، ملفوظ نمبر 35۔ اچھا، بغیر علم کے اگر ہاں تبلیغ کی جائے گی ہاں ہاں تو ضلالت اور گمراہی کا نیا باب کھلے گا، ہاں جی اور اسی میں نیچے لکھا ہی ہے کہ جی، بغیر علم کی تبلیغ کرو گے تو آوارہ گردی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں ہم کو جو باتیں کرنا چاہیے اس کی تحقیق ہونا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح صحیح جی، تب تو معام چلے گا۔ اگر ہم کو ہاں معلوم ہی نہیں ہے، اگر غلط بات ہم ہاں بیان کرنے لگیں گے تو کچھ کا کچھ ہوگا۔ ہوا تو اسی کو معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، ہاں اگر معروف اور منکر کا علم نہیں ہے ہاں ہاں تو اگر وہ تبلیغ کرتا ہے تو فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے۔ معروف کو ہاں منکر بیان کرے گا، منکر کو معروف بیان ہاں کرے گا۔ جی جی اب ایک معاملہ یہ ہے، یہ جی، مروجہ تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ نہیں لیکن نفس تبلیغ تو فرض ہے، لیکن نفس تبلیغ کی بات میں نہیں کر رہا ہاں ہوں، میں ہاں مروجہ تبلیغ کی مرویہ تو جماعت اس کی۔ کو علماء نے لکھا ہے کہ مباح ہے، کسی نے مستحب لکھا ہے۔ اچھا، مباح کس کو کہتے ہیں، کس عمل کو؟ مباح مطلب وہ جائز درجے کی چیز ہے نہیں اس مباح، کو۔ ایک مباح کی تعریف ہوگی نا۔ ہاں مباح وہی ہے کہ آپ کریں گے ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تب بھی کوئی، ٹھیک ہے کرنے تو پر بھی کوئی بہت ثواب اچھا نہیں آپ ہے نا۔ ٹھیک، کرنے پر کوئی ثواب نہیں، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں جی تو جو نکل کے ہم لوگ یہ بیان کرتے ہیں تبلیغ میں نکلنے پر، مروجہ میں ایک قدم ہاں پر 700 نیکی اور 7 لاکھ نیکی ہے، کہاں سے آتی ہے یہ بتائیے وہ آپ۔ نہیں اس میں یہ ہے کہ اس جتنی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں نا تو وہ سب نفس تبلیغ کے وہ ذکر کرتے ہیں تو عام طور نفس پہ۔ تبلیغ ہاں تو نفس جیسے تبلیغ اب یہاں کیوں ملا دیا؟ جیسے نفس تبلیغ اس سے مروجہ تبلیغ سے ادا ہو رہی ہے کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے نفس کہ تبلیغ آپ جیسے ہم لوگ علم حاصل کر رہے ہیں نا، مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، علم نبوی ہے نا اور علم قرآن ہم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ مروجہ جب فضیلت بیان کریں گے تو مروجہ مدرسے یا مروجہ طریقے تعلیم کے بیان کرتے ہیں نا، بیان کرتے ہیں کہ بھائی علم نبوی کی یہ فضیلت ہے، علم قرآن کی یہ فضیلت ہے، علم دین کی یہ فضیلت ہے۔ تو اس طرح سے تبلیغ والے بھی جب ذکر کرتے ہیں نا تو نفس تبلیغ کے ہی سب فضائل وغیرہ بیان کرتے تو کیا نفس ہیں، مان تبلیغ کے لیتا ہے کہ یہ نفس اب ہو تبلیغ سکتا ہے کوئی اپنا اس کام کو بھی بطور خاص ذکر کرے، الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پہ نفس تبلیغ کے ہی وہ سب فضائل ہوتے ہیں۔ تو نفس تبلیغ یہ جی مدارس سے نہیں حل ہوگا؟ نہیں نفس کیوں نہیں، تب ہاں بالکل نہیں، اس سے بھی اور حل ہے، کوئی بھی اور طریقہ ہو، ایک ذرا کوئی بھی طریقہ ہو جس ہاں سے جب دین کوئی دوسروں بھی تک طریقہ پہنچے۔ ہے ہاں ہاں کوئی بھی راستہ ہو، تو یہ جیسے جو آپ یہ چیز جو ہے اپنے لیے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ میری بھائی میری مدرسے ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمارے اس قدم پر، یا بلکہ یہ روایت کے اندر کہ آپ مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اس پر بھی یہ فضیلت منطبق ہو سکتی ہے۔ کون سی فضیلت تو نماز پڑھنے کے لیے؟ یہی یہ اللہ کے 700 راستے میں گنا نکلنے کا، ملتا ہے؟ ہاں 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 کیوں نہیں، آپ نماز پڑھنے جا رہے یہ ہیں تو اللہ کہیں کے پر راستے میں جا رہے یہ کہیں پر آپ بتائیے ہیں۔ کہ بڑی اچھی بات آپ نے کہا ہے کہ تب جی نماز پڑھنے پر 700 گنا فضائل ہوں، مسجد کے لیے، یہ کہاں پر ہے، کس کتاب میں؟ ارے جو آپ کہ اللہ کے ہم راستے میں نکلنے کا اللہ 700 کے ثواب راستے ہوتا میں ہے قدم نکلنے پہ، کے تو تو یہ مسجد جا رہے ہیں اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ تو اللہ تو یہاں کہیں بیان ہوتا ہے یا کسی کتاب میں لکھا وہ تھا؟ الگ بات ہے، دیکھیے آپ نے جو کہا نا کہ بیان ہو نہ ہو، نہیں لیکن تو جو بیان کر بھی سکتے ہیں، آپ کے بقول ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جو ہاں مسجد میں بالکل، ہاں کر سکتے ہیں، کائے نہیں کر کہ سکتے، 700 بالکل گنا کریے، نیکی ملتی ہے مسجد میں پڑھنے سے۔ ہاں یہ تو کر سکتے حدیثوں ہیں۔ میں 27 گنا ہے، اب آپ 700 لائے، حدیث میں تحریف کر دیا آپ نے۔ نہیں تو نماز تحریف کی میں کہہ رہا ہوں، اور کیا، جو چلنے کے اوپر چلنے کے لیے مسجد میں چلنے کے لیے ہاں 700 گنا ہاں نیکی کیا کس کتاب میں ہے، کس نے بیان کیا ہے؟ ارے آپ یہ بتا بتاؤ، رہے ہیں نا کہ اللہ کے راستے میں چلنے کا، میں میں نہیں کہہ بتا رہا رہا ہوں ہوں، آپ لوگ بیان کرتے ہوئے چیز کہاں سے میں پوچھ رہا ہوں؟ نہیں واہ بھائی میں واہ، نہیں ایسے میں بیان نہیں کرتا ہوں، یہ دین میں میں تحریف بیان کر نہیں رہے ہیں آپ کرتا، لوگ، آپ کو دین میں بتا رہا تحریف ہوں۔ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہو؟ ارے اچھا کس کتاب میں میں لکھا ہے، کس کتاب آپ میں کی لکھا ہے
किस किताब में लिखा है कि तबलीग आप मरबूजा तबलीगी जमात में निकलने से 700 गुना सवाब मिलता है? हाँ वही तो आपने कहा ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आपने नहीं कहा है, आपने बताया आप ना। उसकी दिफा कर रहे हैं ना। मैंने कहा लोग ऐसा बयान करते हैं तो उसकी दिफा आप हाँ कर रहे हैं ना। तो वो एक नहीं, अगर मैं आपने कहा कि दूसरी चीजों पर इसका इंतबाह, मैंने कहा कि नमाज पढ़ने पर भी इसका अच्छा, इंतबाह हो सकता तब है। हजरत बिदत किसे अगर कहते हैं? सवाब तो इस एक पर चीज है यहाँ अल्लाह पर के रुक जाइए, रास्ते। हाँ बिदत जी। किसे कहते हैं? अच्छा मैं सुबह अभी इधर नाश्ते में हूँ। नहीं नहीं, नाश्ते में नहीं, आपसे भागने की बात नहीं। आपसे नहीं आपसे नहीं नहीं तफसीली नहीं बात नहीं, नहीं, जो है ना, अब आप भागिए नहीं, थोड़ा सा उम्मत के अंदर सही बात जाए। बिदत असल किसे कहते हैं? मैं आपको जानता भी अरे नहीं हूँ। कोई जाने ना मैं जाने, तफसीली बात से कोई कर भी सकता जाने हूँ। ना जाने, दीन की कोई बात पूछना तो आप लोग उम्मत को सही गुमराह सही। क्यों करते हैं? आप लोग चीज बता के नाश्ते, ये बिदत किसे कहते हैं ये बताए आप। आप कौन है पहले ये बताइए, मैं अरे मैं असल में समझ इंसान हूँ, नहीं एक पा रहा हूँ। मुसलमान हूँ। नहीं आपने इंसान पूछा नहीं कहाँ से हो, मैंने कहा अम्बेडकर नगर से हूँ। और क्या चाहिए आपको? नंबर का अरे कहीं नंबर नंबर मिला। कहाँ से लिए? तो अब बिदत किसे, हजरत एक चीज का कहे आप जाइए, बिदत किसे कहते हैं? आप बताइए किसे कहते नहीं नहीं, आपसे हैं। पूछ रहा आपने हूँ, तो आप तो कुछ पढ़े लिखे। समझा होगा, आपने भी मैं कुछ आपसे समझा पूछ, होगा ना, आप तो हाँ पूछ मैं रहे हैं ना। बताऊंगा आपने क्या समझा है बिदत किसे कहते हैं, बताइए तो मैं इंशाल्लाह आप बताता हूँ मैं क्या नहीं समझाऊँ। नहीं, हाँ वही जो आप समझे पहले बताइए ना, मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि मुझे क्या लग रहा है। क्या आप लगा? बताइए क्या समझते हैं आप मैंने बिदअत जो से। हम्म। किताब देखी है हाँ जी जी। मौलाना मोहम्मद शफी साहब की, हाँ जी। उस किताब में लिखा है, हाँ और देवबंद दारुल उलूम और बिंदौरी टाउन के फतवे में भी लिखा है, हाँ जी। जो क्या काम है? जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर में न हुआ हो हम्म। और ज़रूरत के एतबार से उसको बाद में ईजाद किया गया हो, ज़रूरत है आदमी की, जैसे मदरसा खानका हम्म। पढ़ा, उस पर सवाल ज़्यादा समझ लेना, इसका नाम बिदअत है। हम्म। आप समझे? इस ठीक। वक्त हाँ। मदारिस का एक हम्म। ज़रूरत है, ईजाद किया, खानका एक ज़रूरत ईजाद किया, सब तबलीग में ईजाद किया। अब उस पर हम्म। सवाल ज़्यादा समझ लेना, सवाल समझ लेना, इसका नाम बिदअत है। हम्म। अब तबलीगी जमात में निकल के जो 700 800 या तो 7 लाख बता सुनिए। दो, एक मिनट हाँ ठीक है। पूरी बात हो जाने दी हजरत, उसके बाद हाँ कीजिए। जी जो ठीक है जी। तबलीगी जमात में निकलकर जो बात हम्म। बयान की जाती है कि 700 गुना सवाब, 800 गुना सवाब, जबकि हुजूर और सहाबा के जमाने में तरीका नहीं था, लेकिन जरूरत पर इजाज़ हुआ। अब ये काम बिदअत हुआ कि नहीं हुआ? मदरसा ऐसा कायम हुआ है। मदरसा को ये नहीं कहा सुनिए जाता है। उस पर लोग एक मिनट पैसा रुक जाइए, सुनिए एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, फिर आप सुनता हूँ। अगर ठीक है कोई ठीक ये है। कहता है कि मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का सवाब ज्यादा है और घर पे कम है, हाँ ऐसे तो ये कहते हैं बिदअत ना, होगा कि नहीं होगा? मदरसे में चंदा देने का सवाब ज्यादा नहीं है। नहीं, हमें नहीं एक सवाल कहते हैं, पूछा, हमने कहते मदरसे नहीं मदरसे में चंदा देने का सवाब ज्यादा है, कौन कहते नहीं कहता है? कहते हैं। कौन कहता है? अरे उलमा कहते हैं, लिखा हुआ बिल्कुल नहीं बाकायदा कहते, फतवे में। बिल्कुल नहीं कहते सवाब ज्यादा है। एक अरे भी आलिम दोहरा जिंदगी सवाब है, बताते हैं कि नहीं, दोहरा मदरसे सवाब है। बिल्कुल कहते हैं सवाब ज्यादा नहीं है। अरे दोहरा सवाब है। वो कहते हैं कि मदारिस में दीन तालीम हासिल कर रहे हैं और नादार तलबा पढ़ते हैं, इसलिए आपको चंदा ले रहा हूँ। हाँ, वही उसमें बोलते हैं कि इसमें दोहरा सवाब, एक तबलीग दीन का है, तालीम है दीन का है, और एक जो है सदके का। सदके का। तो हम्म। सवाब ज्यादा कहाँ बता रहे हैं? ये कहीं भी जरूरत पाई जाएगी, दूर चीजें होंगी। आप अरे लोग जो लोग, एक कदम पर 700 नेकी 7 लाख नेकी लाए, तो ये जब ये मैं क्या बताएंगे कह तो रहा हूँ मोहन। आप दिफा कर रहे थे, बिदत काम हुआ कि अच्छा नहीं हुआ, अच्छा। हजरत बता रहे हैं आप। मैं पूछ रहा हूँ, हाँ नहीं बताओ, मैं आप तो पढ़े देखिए, लिखे हो। मैं तने तनहा जो है किसी चीज को बिदात कहूँ या ना नहीं कहूँ, नहीं, अब उससे कोई फर्क पड़ेगा? आप बताइए। बिदत का जो वसूल मैं बयान किया कोई गया, अगर जैसे दारुल है या बड़े इदारे ये सब कहेंगे तो उनका असर होगा, मेरे कहने में कहने से क्या फर्क तो पड़ेगा? अगर मैं कह भी दूं बड़े इदारे की कि बात बिदात कहाँ, है, तो आप बड़े अगर मैं इदारे की कह बात दूं कि मानते हैं? बिदात है। आप हाँ? दारुल उलूम देवबंद की बात मानते हैं? अरे कहा है, मैं खुद जो कासमी हूँ, कहा नहीं तो मानूंगा। दारुल उलूम देवबंद कहता है 7 गादलवी गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं, मानते हैं इसको? हाँ, हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा ना कि क्या जो है तबलीगी जमात गुमराह है। 7 हाँ गादलवी कहा दूं। फतवे में क्या लिखा है? अब जो भी लिखा हो मुझे जो उससे भी लिखा है, चलेगा। आप कासमी हो, उम्मत को गुमराह कर रहे हो। जो भी अरे लिखा हो, मैं नहीं कहा, लिखा क्या बताओ? जो भी लिखा मुझे है कैसे नहीं, आपने कासमी साहब लिखा क्या, ये बताइए आप। मुझे कैसे आपने समझ लिया कि मैं जो है जमाती हूँ या जमाती तबलीगी हूँ? नहीं हो, किसी लेकिन ने सही बताया बात बता नहीं रहे हो ना, उम्मत को गुमराह कर रहे हो। मैं जमाती की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सही मैं बात, कहा, दारुल उलूम में अपने फतवे में क्या लिखा, माशाल्लाह आप कासमी भी हैं और दारुल उलूम को बदनाम भी कर रहे हो, उसका फतवा भी नहीं बदनाम मान रहे हो। कर। स्वाद कांधलवी के बारे में जो दारुल उलूम में लिखा है, उसको मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे भाई देखो भाई, दारुल का कौन नहीं ये मानेगा कासमी उसको? साहब है और आजमी साहब है, दोनों माशाल्लाह।
اور दारुल के फतवे पढ़े भी हैं, दारुल के फतवे को मानते नहीं है। तो ऐसे लोग उम्मत को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं करे, बताओ आप। अरे अब पता नहीं, अब आप जो भी समझिए, जो समझ नहीं मैं रहे असल हैं में हम मैं आपका बैकग्राउंड मुझे मालूम नहीं है। अरे मुझे बैकग्राउंड आप में किस दीन हिसाब की से बात, मुझसे दीन पूछ की रहे बात, हैं। दीन की बात पूछने के बैकग्राउंड चाहिए, एक नहीं डॉक्टर है, ठीक है, इंजीनियर फला। लेकिन मुझसे किस हिसाब से आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम ना, इसलिए मैं आपसे दीन की बात, दीनी सही बात पूछ रहा हूँ। दीन की बात बताइए, दारुल में क्या लिखा है, क्यों नहीं बताते आप? कहाँ दारुल में लिखा है कि जमात तबलीग गुमराह है? मैंने पूछा कहीं लिखा है? दारुल में क्या लिखा है आप बताइए बताइए। पहले, कहीं हमने लिखा है? दारुल में लिखा कहीं क्या लिखा है बताइए कि आप। तबलीग की जमात गुमराह है? अरे मैंने कहीं लिखा पूछा है? है कि दारुल में क्या लिखा है, हमने नहीं कहा तबलीगी आप जमात भी गुमराह बताए, है। नहीं तो आप मैंने जो कह कभी रहे कहा, हैं कि इसमें बिदात है कि नहीं मैंने बिदात है, कभी तो कहा मोहल्ला कि दारुल में लिखा है कि बिदात है? अरे भैया के बिदात की वसूल बताया दारुल के वेबसाइट से। वसूल नहीं, वसूल तुमसे पूछिए जो भी कि आप जो कहिए जो कि भी बिदात है। जो वही उस वसूल की खिलाफ वर्जी वसूल करेगा उसमें आएगा। नहीं नहीं, अच्छा उसूल तो को इसके बाद मुंतबिक फिर करना ये हर कस आप और नाकस का काम नहीं है अब कि आपने उसूल सुन लिया उस पर जाकर के फिट अच्छा तो कर आप दिया। बताइए क्या है। उसूल आप तो कासमी साहब बताइए फिर क्या है। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं क्यों नहीं उसूल का बताएंगे, मुंतबिक कुछ करने सिर्फ का काम गुमराह ये भी बड़े करेंगे, सिर्फ उलमा का उम्मत काम को है, गुमराह जाहिल और हर करेंगे कस और नाकस और इस नहीं। गुमराह करने के लिए आपको कुछ मिलता होगा। अगर आप नहीं तो मिलता है तो उम्मत वही को मैं सही बोल रहा बात हूँ ना क्यों कि नहीं बताते आपसे हो। मुझे अभी अगर थोड़ा आपको समझ कुछ में नहीं आ नहीं रहा किस मिलता हिसाब से है बात करना मौलाना, है। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो उम्मत को कुरान हदीस की सही बात क्यों नहीं बता रहे हो। दारुल में क्या अरे लिखा है क्यों नहीं बता रहे हो, बोलो आप। दारुल फतवा ऑनलाइन मौजूद है, बताने की क्या जरूरत, कौन नहीं जानता है। बताने जरूरत है, उसमें लिखा क्या है। आप तो कासमी है ज्यादा, उसके आप बताइए क्या लिखा है, बताइए आप आप। बताइए क्या लिखा है। आ- उसमें लिखा है दारुल में तबलीग जमात लिखा बिदात है है? कि अंबिया की शान में तबलीगी बेअदबी जमात करते बिदात है, हैं। पहले बताइए। दारुल में लिखा सुनिए, उसमें लिखा है अगर तबलीगी आप जमात बिदात है? अगर आप नहीं जानना चाहते तो सुनिए क्या लिखा है, हाँ मैं पढ़ सुनिए, के बता। सुनिए बताइए। दारुल में लिखा है नहीं कि आपने अंबिया की। पूछा कि अरे नहीं भैया तो सुनिए, सुनेंगे एक या तो मिनट बताएंगे। सुन लिए, एक मिनट। आपने बोला कि तबलीगी जमात बिदात बन रही है उसूल नहीं के मैंने हिसाब से। आपसे पूछा इस उसूल से बिदअत है कि नहीं है, मैंने हाँ पूछा। हाँ वही ये पूछ मैंने रहे हैं पूछा ना, नहीं, अब आप बताइए है कि नहीं है। अब वही बता रहा हूँ मैं ना कि जब इस उसूल से बन रही तबलीगी जमात बिदात तो दारुल में क्यों नहीं लिखा है तबलीगी जमात बिदात अरे है? भाई इस उनको ये उसूल उसूल से मालूम है, उस उनको उसूल उसूल पर मालूम है कि नहीं? उस वसूल पर आप मुझसे ज्यादा मालूम होगा उनको ना, या तो सुनो। खामोश रहिए या तो बोलिए, सुनिए बताइए आप, मैं सुनता हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपने बोला इस उसूल से तबलीगी जमात बिदात है, ये आप कह रहे हैं ना। नहीं मैंने आपसे पूछा क्या बिदअत हुई कि नहीं, सवाल पूछा मैंने। तो वही 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 चीज है, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं कहने के बजाय दारुल को उसूल मालूम है कि नहीं, उसूल आप वही से ले रहे हैं ना। अब दारुल से पूछ लो। दारुल से उसूल, अहकामुल वली फिर अहकाम तबलीग में लिखा है बिदअत। अरे वो तो सुनिए 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 अहकामुल इनफरादी बलीग। राय का अरे कोई भाई एतबार रुको, नहीं है। रुको बात सुनो तो। ऐसे राय से तो जो है अरे मदारिस की रुकेंगे जो बिदात मौलाना, है। मौलाना रुकेंगे नहीं रुकेंगे, और दूसरी बात अशरफ सुनिए। अली थानवी काफिर भी हैं देखिए बहुत से लोगों मौलाना की राय है, में। अब फंस गए, रुक नहीं रहे हैं। मैं बोल अहकामुल रहा हूँ बलीग फिर अशरफ अली अहकाम थानवी तबलीग काफिर भी हैं में बहुत से लोगों की राय में, अहकामुल बलीग फिर तो अहकाम क्या करेंगे तबलीग उसका? में लिखा है ये बिदअत है। इस 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 तो एक इस आदमी चीज कहने को से कोई चीज इस बिदात चीज नहीं होती। मौलाना आप इस मौलाना है चीज क्या को है? जब दारुल उलूम में पेश किया गया कि फलां किताब में लिखा है, तो दारुल उलूम ने कहा है उस किताब में जहाँ बिदअत लिखा है उसकी वजह भी बताई होगी है। वह वजह आपके समझ में नहीं आती है तो मुझसे पूछो, ये लिखा है दारुल में। ठीक है, दारुल में और कहा उम्मत बिदात है, को पूछ रहा कब हूँ तक मैं। गुमराह करके मौलाना, गुमराह करने के लिए कितना पैसा मिलता है भाई। आप कुरान कौन, हदीस की सही बात क्यों नहीं बताते हो। आप आलिम हैं, पहले बताइए। अरे आलिम भैया हैं? आलिम, कुरान हदीस की सही बात क्यों नहीं बताते हो, ये बताओ। सही बात इतनी आसान नहीं होती, हर आदमी बता हाँ दे। देखो भाई, ये कहते हैं सही बात इतनी आसान नहीं है, ये गुमराह करने के लिए तय किए गए हैं, इनको मिलता होगा तभी उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। अरे यार आप जाहिर भी है कुछ बातिल दीजिए, मैं का आपको काम भी ही जो है है कि कुरान आपकी हदीस तरफ से से लोगों बिदात को कहने लगूं। हटाना। और ये कह रहा कुरान हूँ हदीस की बात मैं पूछ रहा हूँ, ये मौलाना होके और कहता मैं कासमी भी हूँ और कुरान हदीस की सही बात उम्मत को नहीं बता रहा है। मैं कह रहा इससे हूँ कि अंदाजा लगाइए मौलाना उम्मत को कितना गुमराह करेगा, और जाहिर है जो गुमराह करेगा उसको कुछ न कुछ आप मिलेगा। भी कुछ पैसा दीजिए मुझे ना, मैं आपकी तरफ से दफा कर देता हूँ। क्या मैं मेरी तरफ से नहीं, कुरान हदीस तरफ दफा करना मैं कुरान हदीस कर दूंगा ना, है मेरे तो पास है कुरान हदीस। कुरान हदीस की मुखालफत क्यों करते हो। आप थोड़ा दीजिए मुझे, जब मैं कुरान पैसा हदीस की दूंगा तरफ। तब कुरान हदीस से आप कुरान दफा हदीस सलमान करेंगे, नदवी के पास भी है, और कुरान हदीस की कुरान दफा। हदीस शियों के पास भी है। आप पैसा दीजिए, मैं आपकी तरफ से कर दूंगा। सलमान नदवी के ग्रुप पे आप हैं, आप पैसा किसिया के दीजिए, ग्रुप कर पे देता हूँ ना, उनकी किसिया तरफ से के कर ग्रुप पे दूंगा, है। पैसा दीजिए। देखो ये कहता है पैसा तो मैं दफा करूंगा जैसे सलमान नदवी ने किया, इसका कोई दीन धर्म नहीं मौलाना का। ये पैसा का आदमी है, ये पैसा दो कि उधर बात करेगा। देख लो भाई आप कहता है ये कैसे कलाकार अरे मौलाना यार तक पैदा आप होते। लोग कुछ समझते हैं, पता नहीं कौन हाँ लोग हैं, क्या भाई दिमाग है। समझ तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिया है ताकि